Hello dear students, very good afternoon. Today we are going to talk about types of chemical reactions, right? We have seen what is chemical reaction. Now we are going to learn about types of chemical reactions. There is four kinds of chemical reactions. Number one is combination, number two is decomposition, number three is displacement, number four is double displacement reaction, right? There is four kinds of chemical reactions. Which one? Combination, decomposition, displacement and double displacement reaction. Is that clear? Now we are moving on combination first. Combination reactions जहाँ पर दो reactant compound combine होके एक ही compound बनाते हैं, एक ही product बनाते हैं, right? The combination reaction is that reaction where two reactant combine together and form a single product, that is called combination reaction. Like NH3 plus HCl is going to form NH4Cl. If you see, there is two types of the reactant and forming only one kinds of the product, right? NH4Cl, ammonium chloride. Is that clear? Another example of combination reaction is 2Mg plus O2 is forming 2MgO, magnesium oxide. Is that clear? So as I already told you that in combination reaction there is two kinds of reactant and forming a single product, right? Though reactant forming a single product. Is that clear? Now we are moving on second one, decomposition reaction. This is what decomposition reaction. The decomposition reaction is just opposite to combination reaction. Combination reaction में क्या होता है, दो reactant एक product बनाते हैं. Decomposition reaction में वही product ब्रेक डाउन होके दो रिएक्टेंट्स में बढ़ जाता है. जैसे दिस इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट ब्रेक्स डाउन इनटू रिएक्टेंट. इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन हीट इज रिक्वायर्ड. जब तक हीट इसको नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा. लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इनको अगर हीट दिया जाए तो दे आर ब्रेकिंग डाउन इनटू CaO एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू द रिएक्टेंट. इन्हीं से कैल्शियम कार्बोनेट बना है. इनको अगर हमने ऐड कर दिया तो कैल्शियम, इसको रिवर्सिबल कर दिए अगर हम तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. अगर इसको रिवर्सिबल कर दिए तो, क्योंकि इनको ऐड कर दिया तो ये बनेगा और इन्हीं का ब्रेक डाउन होकर क्या हो रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, right? Is that clear? The another example is H2O. If H2O is going to break down, it will be like H2 and O2. There is two molecules of H2O. It's going to H2 gas and oxygen gas, right? So combination reaction में क्या होता है, दो reactant मिलके एक single product बनाते हैं. और decomposition reaction में क्या होता है, उसी का उल्टा, product breaks down होकर किस में हो जाता है, reactant में. Is that clear? Now we are moving on. The third one is displacement reaction. What is displacement reaction? इसमें क्या होता है, more reactive element displace the less reactive element. जो reactive element ज़्यादा होता है, जिसके पास ज़्यादा reactivity होती है, वो less reactive element को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर देता है. एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉपर सल्फेट है CuSO4 इज गोइंग टू रिएक्ट विथ जिंक. अब यहाँ पे सल्फेट के साथ किसने कंपाउंड बनाया हुआ है, यहाँ पे ये सल्फेट है, राइट? इसके साथ कॉपर का कंपाउंड बना हुआ है, पर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव ये क्या है, लेस है. ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, राइट? इससे जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. इसके लिए जैसे इनके साथ रिएक्शन होगा, देयर विल बी जिंक सल्फेट विल फॉर्म एंड कॉपर विल बी सेपरेटेड, राइट? कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है. बात समझ में आ रही है? जैसे समझो दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और तीसरा कोई आता है अगर और उसको बोलता है मुझे यहाँ पे बैठना है, ठीक है, तो अगर उन दोनों के से ज़्यादा उसके पास ताकत है तो उन दोनों को वहाँ से हटा देगा, बैठा देगा, ज़बरदस्ती बैठ जाएगा. पर अगर उसके पास ताकत कम है तो वहाँ पे नहीं बैठ पाएगा. तो यहाँ पे कॉपर और सल्फेट दो लोग पहले से ही हैं, ठीक है, पर कॉपर से ज़्यादा ताकतवर कौन है, रिएक्टिव कौन है, जिंक. तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से और सल्फेट के साथ खुद कंपाउंड बना लेगा. इज दैट क्लियर? तो ZnSO4 and going to form copper will be separated out. Is that clear? अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, राइट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें क्या होता था, एक मोर रिएक्टिव दूसरे लेस रिएक्टिव को क्या करता था, डिस्प्लेस करता था ना. डबल मतलब दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, राइट? जो दो कंपाउंड होंगे दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे. जैसे यहाँ पे देखो NaOH, यहाँ पे क्या है NaOH और HCl.
अब NaOH में Na प्लस OH माइनस होता है, Cl में H प्लस और Cl माइनस होता है, तो प्लस किसके साथ चला जाएगा, माइनस के साथ, और ये वाला प्लस इस माइनस के साथ चला जाएगा, राइट। तो Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, दे विल फॉर्म NaCl सोडियम क्लोराइड, राइट। और H किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ, इट विल फॉर्म H2O, राइट। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। सोडियम अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है तो साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन भी सोडियम की जगह ले रहा है। तो दिस काइंड्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर? Now we are going to talk about two another kinds of reaction, endothermic and exothermic reaction. Endothermic and exothermic reaction. Endothermic, endo means होता है in, thermic means होता है टेम्परेचर। ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर इन हो, टेम्परेचर इनसाइड हो, राइट। टेम्परेचर वो लेकर रिएक्शन को कंप्लीट करे। जैसे समझो आइस है, फ्रिज से हमने आइस निकाला, बाहर रख दिया, राइट। तो अब आइस जो है वो टेम्परेचर लेगा और टेम्परेचर लेके हीट होगा तो पिघलेगा तो लिक्विड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये आइस क्यूब हमने जो बाहर निकाला है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर ले रहा है ना, इट्स ऑब्जर्विंग टेम्परेचर, राइट। इट्स टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड इट्स बिकम सॉलिड टू लिक्विड। तो टेम्परेचर लेकर इनका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहे हैं। तो जहां पर टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, टेम्परेचर ले, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन जो टेम्परेचर लेकर कंप्लीट करता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें तो क्या बन जा रहा है, CaO और CO2, राइट। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, टेम्परेचर इनसाइड हो, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मीन्स होता है रिलीज और थर्मिक मतलब टेम्परेचर रिएक्शन, राइट। अब अगर हमने एक्सोथर्मिक उसी हम देखो क्या करते हैं, बॉटल लेते हैं, बॉटल में पानी रखते हैं और पानी को हम फ्रिज में रख दिए। पानी का टेम्परेचर उस समय होता है 18-20 के आसपास होता है टेम्परेचर। जैसे उसको फ्रिज में रखते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है ना, टेम्परेचर कम होता चला जाता है ना। तो क्या करता है फ्रिज, क्या करता है, बॉटल के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको रिलीज करता है। रिलीज करता है मतलब 18 है तो उसको 15 करेगा, 10 करेगा, 8 करेगा, 6 करेगा, 4 करेगा, राइट। तो आइस बन जाता है, बॉटल ही आइस बन जाती है पूरी की पूरी, अंदर का पानी, राइट। तो क्या कर रहा है, टेम्परेचर रिलीज कर रहा है ना, बॉटल के अंदर का टेम्परेचर जो है उसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, राइट। तो रिलीजिंग द टेम्परेचर। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे टेम्परेचर क्या हो, रिलीज हो, बाहर निकले। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, आप देखो चूना आता है, चूना, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना बोलते हैं। उसको अगर पानी में आप घोल दो ना तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं और हीट निकलती है। जो गांव में देखो, गांव में और यहाँ पे भी चूने की पुताई करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं, उस चूने को अगर पानी में आप घोल दो तो उसमें से हीट बहुत तेज निकलता है। तो हीट निकल रहा है मतलब हीट आउटसाइड आ रहा है, आउटसाइड मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स रिलीजिंग, राइट। सो कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ मिक्स कर दिया, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हीट रिलीज्ड। So this kind of reaction is known as exothermic reaction. So is that clear? एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, 4 टाइप के, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में उसका जस्ट अपोजिट होता है, प्रोडक्ट किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, रिएक्टेंट में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और उसके साथ कंपाउंड बना लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, राइट, और उसके बाद अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट इनसाइड होती है, जैसे आइस इनटू लिक्विड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट इनसाइड लिखा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, राइट। इसमें हीट इनसाइड होता है और एक्सोथर्मिक में हीट आउटसाइड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ एनी क्वेश्चन लीव इन कमेंट, ओके, थैंक यू।